Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Students, we are going to do the next questions of chapter 8, sound waves, and we are left with 7 questions. Let's begin. So, if you see the ninth question, see in the last video we have done the back exercise of sound waves. We have done till 8 questions. Okay. So today we are going to start with the ninth question. And the question is, a source produces a sound wave of wavelength 3.44 meter. So there is a source which is producing sound waves, and the wavelength of those sound wave is given to you, and that is 3.44 meter. This is 3.44 meter. If the wave travels with the speed of, now the sound wave is traveling with some speed. And what is the speed given? Speed is denoted with V, and speed is 344 meter per second. What do you need to do? You have to find out the time period. Very simple questions, Beta. See, we need to find out the time period. And the time period formula in this chapter is 1 by f. What is f here? F is the frequency. What is f here? F is the frequency, right? How can we find out the frequency? There is a relation V is equals to f lambda. There's a relation V is equals to f lambda. If you need to find out frequency from it, the formula will be V upon lambda. The formula will be V upon lambda. And just because V is 344 and lambda, which is wavelength, is 3.44. So when you calculate it, 344 divided by 344 into 100, पॉइंट को ओपन कर दिया ना, तो ये आ गया हमारे पास 100. Just because this is frequency and the units of frequency is hertz, so frequency is hertz, 100 hertz. And since we need to find out the time period in this case, the formula for the time period is 1 by f. Just denote it with capital T. T is equals to 1 upon f. Our answer will be 1 upon 100, and you will get the answer 0.01 seconds. So I hope this problem is very much clear to everyone. We are moving to the next numerical after this. चलिए, let's begin. तो we need to find out t from it, तो हमारा आंसर निकल आया. So t here is 0.01 seconds. This is question number 9. Moving to the next numerical, and the next numerical is okay. Let's begin with the next numerical. There's a ship searching for a sunken ship. Sent a sonar signal and detected an echo after 5 seconds. तो एक शिप है, ठीक है, वो एक संकन शिप जो एक रैकेज है एक तरह से, ठीक है, एक डूबी हुई शिप है जो कि टूटी फूटी सी हो रखी है, ठीक है. शिप सर्चिंग फॉर अ संकन शिप. दिस शिप सेंट अ सोनार सिग्नल, और 5 सेकंड बाद कुछ एको फील किया उन्होंने. If ultrasonic wave travel at 1525 meter per second in sea water, approximately how far down in the ocean is the wreckage of the sunken ship located? तो कह रहे कि ये कितनी दूरी पे हैं एक दूसरे के. We need to find out that. देखो बेटा, एक सोनार पल्स है, वो नीचे भेजा गया, ठीक है, वो इस रैकेज के पास गया और वापस आया, ठीक है, मतलब एक राउंड ट्रिप लिया उसने,
ठीक है, क्या है, सबसे पहले एक सोनार पल्स है, ठीक है, क्या किया, उसे नीचे भेजा गया, राइट। देन अब उसने क्या किया, इट ट्रेवल्स टू द रैकेज एंड बैक, मतलब एक राउंड ट्रिप लिया गया, ठीक है। एको टाइम कितना था, 5 सेकेंड, है ना। और स्पीड ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स कितनी है, स्पीड है इन सी वाटर इज 1525 मीटर पर सेकेंड, राइट। देखो बेटा, हमें क्या करना है, पहले तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव निकालना है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव, वो निकाल लेते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, राइट। तो स्पीड कितनी है बेटा हमारे पास, दैट इज 1525 फॉर द अल्ट्रासोनिक वेव, और टाइम कितना है एको टाइम, दैट इज 5, you will calculate it and you will get the answer 7625 मीटर। देखो बेटा, ये कौन सा डिस्टेंस है, ये राउंड ट्रिप का डिस्टेंस है, ये किसका है, राउंड ट्रिप का डिस्टेंस है। आपको क्या करना है, आपको वन वे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, क्या करना है आपको, वन वे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, वन वे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, मतलब एक तरह से आपको क्या करना है, आपको निकालनी है डेप्थ ऑफ रैकेज, क्या निकालना है, डेप्थ ऑफ रैकेज, और डेप्थ का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, दैट इज टोटल डिस्टेंस, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2 क्यों किया बेटा, हमें एक राउंड ट्रिप का नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, वन वे डिस्टेंस चाहिए। राउंड ट्रिप का डिस्टेंस कितना था, इतना, अब उसको हाफ कर दो, यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। जब इसको हाफ कर दोगे तो यू विल गेट योर आंसर, एंड द आंसर विल बी 3812.5 मीटर, या अप्रोक्सीमेटली 3813 के अप्रोक्सीमेशन में you will get your answer. So I hope this numerical is very much clear to everyone. तो सबसे पहले नीचे सिग्नल्स भेजे गए, वहां से एक और रिटर्न हुआ, कितने सेकंड में रिटर्न हुआ, 5 सेकंड में रिटर्न हुआ। अल्ट्रासोनिक वेव्स जो ट्रेवल कर रही हैं उनकी स्पीड दे रखी है, आपको पहले टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेना है जो कि स्पीड इनटू टाइम है, एंड आफ्टर दैट जस्ट बिकॉज दिस वाज द डिस्टेंस फॉर द राउंड ट्रिप, यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट द वन वे डिस्टेंस एंड यू विल गेट योर आंसर after dividing it by 2. Moving to the next numerical, that is the 11th numerical. Now what is the numerical given to you? The numerical is, there is a vehicle is fitted with the ultrasonic distance sensor as part of the parking assistance system, which provides echolocation while the driver is reversing the vehicle. ये जो कार्स होती है ना, जब ये बैक कर रही होती है ना पार्किंग्स में, तो इनके पीछे ना अल्ट्रासोनिक सेंसर्स लगाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, इट इमिट्स अल्ट्रासोनिक वेव्स व्हिच इज रिफ्लेक्टेड बाय द ऑब्स्टेकल। अगर इनके आसपास कोई ऑब्स्टेकल आ रहा होता है तो ये अल्ट्रासोनिक सेंसर्स क्या करते हैं, एक अलार्म बजा देते हैं और बीप बीप एक वार्निंग सिग्नल दे देते हैं। When the warning beep starts sounding at a distance of 1.2 meter from the obstacle, how much time is taken by the ultrasonic waves to travel to the obstacle and come back? तो क्या बोला है इसने, उसने बोला है कि जब इसने बीप बीप किया ना, तो ऑब्स्टेकल से जो डिस्टेंस था ना, ऑब्स्टेकल से जो डिस्टेंस था दैट वाज 1.2 मीटर, और इसकी जो बेटा आ रही है स्पीड ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव हियर, वो कितनी है, 345 मीटर पर सेकेंड इन एयर, राइट। सबसे पहले देखो, वो आ रही है और वापस जा रही है, ये जो डिस्टेंस दे रखा है ना आपको, यहाँ पे इसने क्या बोला है कि ऑब्स्टेकल 1.2 मीटर डिस्टेंस पे पड़ा है। अब देखो, यहाँ से जो बीप होगी वो आएगी और वापस जाएगी, है ना, यही होगा ना, मतलब आपके पास वो रिफ्लेक्ट बैक करेगी एक तरह से। तो टोटल डिस्टेंस क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस
ट्रेवल्ड क्या आएगा, ये तो सिर्फ वन वे का था जब ये जा रही थी, ठीक है, और रिफ्लेक्ट करके आपके पास आ रही है, तो ये आएगा 2 इंटू 1.2, राइट, तो ये आ जाएगा 2.4 मीटर्स, है ना। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ गया इतना। हमें क्या निकालना है, वी नीड टू फाइंड आउट हाउ मच टाइम इज टेकन बाय द अल्ट्रासोनिक वेव्स टू ट्रेवल टू द ऑब्स्टेकल एंड कम बैक, ठीक है, उसने कम बैक का भी बोला है साथ में, टोटल, तभी तो हमने टोटल डिस्टेंस निकाला है। तो आपके पास क्या आएगा, टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, दैट विल बी टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टोटल डिस्टेंस है 2.4 और स्पीड कितनी है ऑफ द अल्ट्रासोनिक वेव, दैट इज 345, मीन्स 24/10 इंटू 345, एंड जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपका अप्रॉक्सीमेटली आंसर आएगा, दैट विल बी 0.007, ये आएगा 0.007 सेकेंड्स, तो टाइम आएगा इतना, ठीक है। सो आई होप यू गेट योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, question number 12. The speed of the sound in air is 331 meter per second at 0 degree Celsius. 0 degree Celsius means बहुत ज़्यादा कोल्ड एयर है ये, ठीक है। तो कोल्ड एयर में जो स्पीड ऑफ साउंड है वो इतना है, एंड जब 22 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो आपके पास स्पीड ऑफ द साउंड इतनी आ जाती है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, देखो बेटा, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस, राइट, वो कितनी दे रखी है, दैट इज 331 मीटर पर सेकेंड, राइट, एंड सिमिलरली द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर अगेन ऑब्वियसली, but at 22 degree Celsius is 344 मीटर पर सेकेंड, मतलब जब हीट है तो आपके पास स्पीड ज्यादा है, ठीक है, ठीक है। roughly how much extra time roughly how much extra time will the sound of the thunder take to travel at a distance of 1720 meters if the air temperature changes from 22 degree Celsius to 0 degree Celsius। तो कह रहा है कि अगर आपके पास कितना एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, जो बिजली होती है ना, थंडर, रफली हाउ मच एक्स्ट्रा टाइम विल द साउंड ऑफ द थंडर, आपके तक मतलब इतने डिस्टेंस तक पहुंचने में कितना वो टाइम लेगी, कितना एक्स्ट्रा टाइम लेगी, अगर टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है फ्रॉम 22 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस। देखो बेटा, डिस्टेंस कितना दे रखा है, 1720 मीटर, राइट। स्पीड, लेट्स सपोज इसे हम जो ये वाली है 22 डिग्री सेल्सियस, इसे V1 कंक्लूड कर देते हैं, और 0 डिग्री सेल्सियस वाली को हम V2 कंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। और बेटा देखो, हमें निकालना है टाइम टेकन। टाइम टेकन का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 22 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास टाइम कितना आ रहा है। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस आ रहा है उस टाइम पे 1720 डिवाइडेड बाय 344। सिमिलरली आप T2 निकाल लो, मतलब एट 0 डिग्री सेल्सियस टाइम निकाल लो, दैट इज दिस वन डिवाइडेड बाय स्पीड कितना है 331। तो जब आप इसे कंक्लूड करोगे तो यू विल गेट द आंसर 5, एंड जब इसे कंक्लूड करोगे यू विल गेट द आंसर 5.20 सेकेंड। T1 आएगा 5 सेकेंड, एंड T2 जब कैलकुलेट करोगे तो विल गेट द आंसर 5.20 सेकेंड के अप्रॉक्सीमेशन में आएगा। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है एक्स्ट्रा टाइम।
if the air temperature changes from 22 degree Celsius to 0 डिग्री सेल्सियस. आप क्या करोगे एक्स्ट्रा टाइम निकालने के लिए? T2 minus T1 means 5.20 minus 5 and you will get the answer 0.20 seconds. तो ये आ जाएगा बेटा आपका एक्स्ट्रा टाइम. चलिए, moving to the next question. Now the question is the variation of density of the medium for a sound wave propagating with the speed of 340 meter per second is shown in this figure. You need to calculate the wavelength and frequency of the sound. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया हुआ है यहाँ पे? स्पीड दे रखी है, ठीक है, साउंड वेव के प्रोपोगेट करने की स्पीड दे रखी है, दैट इज 340 मीटर पर सेकेंड, राइट? मतलब आपको v गिवन है. एंड इफ यू सी दिस डायग्राम, यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो रहा है जो आपकी वेवलेंथ है बेटा वो आ रही है 8 सेंटीमीटर. मतलब अगर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं मीटर्स में तो विल गेट 0.08 मीटर्स. हमें क्या निकालना है? वी नीड टू फाइंड आउट द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी. वी नीड टू फाइंड आउट द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी. वेवलेंथ तो हमें ऑलरेडी गिवन ही है, राइट? हमें निकालनी है फ्रीक्वेंसी. तो v is equals to f lambda is the formula for the frequency. Frequency is equals to v upon lambda. V is 340 and lambda is 0.08 means 8 into 100. So you will get the answer. ये आएगा बेटा आपके पास 4250 hertz. This will be your answer in this case. Moving to the next question. Very nice question. The graphical representation of two sound waves A and B propagating at the same speed of 345 meter per second. So there are two waves A and B given here and they are propagating with the same speed. And the speed here is 345 meter per second. What is the wavelength of each of them? दोनों की wavelength बताना है and you need to calculate the frequency also. तो सबसे पहले हमें क्या करना है? A and B की wavelength भी निकालनी है और frequency भी निकालनी है. क्या करना है? Wavelength of A, wavelength of B, frequency of A and frequency of B. हमें ये calculate करना है, right? अब ग्राफ से अगर देखें तो ये जो वेव A है वो पहला ऑसिलेशन कब कंप्लीट कर रही है? 2.5 वेव्स 2.5 के ऊपर 2.5 सेंटीमीटर के ऊपर, राइट? अब ये 2.5 है, 2.5 प्लस 2.5 एंड देन 2.5 तो ये आ जाएगा 7.5, है ना? आप क्या लिखोगे? वेव ए कंप्लीट्स अबाउट 2.5 waves in 7.5 सेंटीमीटर, है ना? 7.5 सेंटीमीटर 5.0 एंड लास्ट आएगा ये क्या आएगा? 7.5 ही आएगा ना. तो वेव ए जो होगी इट कंप्लीट्स अबाउट 2.5 वेव्स, है ना, इन 7.5 सेंटीमीटर. दैट मीन्स वेवलेंथ क्या आ जाएगी? 7.5 अपॉन 2.5 एंड यू विल गेट द आंसर 3 सेंटीमीटर. दैट मीन्स 0.03 meters. सिमिलरली वेव बी की बात करते हैं. वेव बी कंप्लीट्स, देखो बेटा बी की बात करते हैं. यहाँ पे एक ऑसिलेशन तो यहाँ पे खत्म हो रही है 5.0 पे, है ना? मैं हाफ ऑसिलेशन की बात कर रही हूँ यहाँ तक की, ठीक है? 2.5 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा? 1.25, है ना? 2.5 का हाफ करेंगे तो ये आएगा 1.25, है ना? और यहाँ पे जाके 2.5 एक तरह से कंप्लीट होगा एक ऑसिलेशन. तो ये क्या मतलब है? वेव बी कंप्लीट कितना कर रही है? अबाउट 1.25 वेव्स कितने सेंटीमीटर्स में? 7.5 सेंटीमीटर्स में. दैट मीन्स
lambda p कितना आएगा, that is 7.5 upon 1.25. When you will calculate this term, you will get the answer 6 centimeter or you can get 0.06 meter. So I hope यहाँ तक सबको क्लियर है. आगे चलते हैं. वेट, चलिए आगे बढ़ेंगे. तो अभी हमें क्या है, हमें स्पीड दे रखी है. ए एंड बी दोनों की स्पीड सेम है, दैट इज 345 मीटर पर सेकेंड, राइट. तो यहाँ पे हमारी वेवलेंथ तो आ गई, वेवलेंथ ऑफ ए भी निकल गई, वेवलेंथ बी भी निकल आई. फ्रीक्वेंसी ऑफ ए एंड बी निकालना है. फ्रीक्वेंसी ऑफ ए एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ बी कैसे निकालेंगे? पहले हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ ए. फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? यूज दिस रिलेशन, you will get the answer V upon lambda. Since we are finding it for A, frequency is equals to speed upon lambda A कितना है? Wavelength of A is this one, and you will get the answer from it, and the answer will be 11500 hertz. Similarly, you will find FB. FB स्पेसिफिक नहीं है बेटा, ये क्या है? फ्रीक्वेंसी एट B. ठीक है, वो क्या है? दिस वन, V upon lambda b, and you will get your answer, that is 5750 hertz. ठीक है. तो बेटा अब ध्यान से देखो, हमने निकालना था वेवलेंथ एट ए, वेवलेंथ एट बी, फ्रीक्वेंसी एट ए एंड फ्रीक्वेंसी एट बी. सो आई होप ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर टू यू. मतलब अगर हम बात करेंगे वेव ए की और वेव बी की, वेव ए की जो वेवलेंथ आ रही है बेटा, वो हमारे पास कितनी आ रही है? 0.03. एंड वेव बी की वेवलेंथ कितनी आ रही है? 0.06. एंड सिमिलरली फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? एट ए फ्रीक्वेंसी आएगी 11500 हर्ट्ज, एंड बी की क्या आएगी? 5750 हर्ट्ज. So this is your answer. Don't forget to write the meter here, obviously. And चलिए, moving to the last numerical of this chapter. Again, it's a very important numerical. तो चलिए देखते हैं how can we find it. चलिए बेटा, two identical sound sources are placed at A and B. There are two sources, they are identical in same, okay, they are placed at A and B, right. तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है? One is in the air. अगर आप ये देखो तो ये जो A वाला है this is in the air, and जो B वाला है this is in the water, right. One is submerged in water and one is in the air. Both produce sound at the same time, which travels horizontally to the vertical side of the cliff and come back. तो दोनों ने सेम टाइम पे कुछ साउंड प्रोड्यूस किया. क्या हुआ? वो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली इस क्लिफ के साथ जाके टकराया, इस क्लिफ के साथ जाके टकराया और वापस आ गया. देखो ये किसका केस है बेटा? ये एको का केस है. If the time taken by the sound to return to A, अब उसने क्या टाइम दिया हुआ है, time taken by the sound to return to A, मतलब TA is equals to 4.5 than that of TB in time at B. What is the ratio between the speed of the sound in the air and water? बेटा सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि हमें गिवन क्या क्या है. हमें गिवन है sound travels to the cliff and returns and returns. मतलब total distance is same for both A and B.
अगर क्लिफ से देखें तो ए से भी उतना ही डिस्टेंस है और बी से भी उतना ही डिस्टेंस है, सेम है. टाइम टेकन time taken by sound to return to A is 4.5 times that of B. इसका मतलब क्या है कि time at A is equals to 4 point times time of B. अब देखो होता क्या है, जो हमारा echo फॉर्मूला होता है ना टाइम पीरियड वाला, तो कितना होता है T is equals to 2D upon V. डी इज द डिस्टेंस, जब ये यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक गया, फिर इसने जब रिटर्न बैक किया तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2d. तो 2d अपॉन v टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना, तो टोटल टाइम कितना लगा, यहाँ टोटल डिस्टेंस कितना लगा, दैट इज 2d अपॉन v आएगा, है ना. तो सिमिलरली अगर हम यही वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट करते हैं तो क्या आंसर आएगा बेटा, द आंसर विल बी 2d अपॉन va, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है ना ए से भी और बी से भी. टीबी कैसे लिखेंगे, 2d अपॉन वीबी, राइट. अब इसे सिंप्लीफाई कैसे करना है, दोनों साइड्स देखो तो डी डी है कॉमन है, कैंसिल आउट कर दिए, 2 and 2 कॉमन है, कैंसिल आउट कर दिए. 1 by va is equals to 4.2 अपॉन वीबी, राइट. यहाँ से वीबी निकाल लेते हैं, वो आ जाएगा 4.5 va. velocity of v is equals to 4 point times that of va. हमें क्या निकालने के लिए बोला है, रेशियो ऑफ स्पीड निकालने के लिए बोला है. व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एंड वाटर. कैसे निकालेंगे, अगर हम ऐसा करें कि ये वीबी नीचे ले जाएं और 1.5 इस तरफ आ जाए, मतलब ये आ गया 1.45 is equals to va upon vb. What is va here? It is the velocity of air, and this is the, obviously this is the speed in air and this is the speed in water. तो ये आएगा 1/4 पाई, ये आ गया बेटा आपका रेशियो. द रेशियो ऑफ स्पीड of sound in air and water is given to be 1:4.5. This is your answer. So I hope this numerical is also clear to everyone and there is no issue. चलिए बेटा, see all once, and that's it for this chapter. And students, please, please, please don't forget to like and subscribe the channel and share it as much as you can. Thank you so much, everyone. Have a good day. Take care.